Number one, plow. Now, this is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and scrapping of soil etc. तो जो ये प्लो है ये काफ़ी हमारे एंशियंट टाइम से यूज़ होता आ रहा टूल है. सॉइल को प्लो करना, उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करना, क्रॉप में वीड्स को रिमूव करना, सॉइल को स्क्रैप करना. And this implement is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals like horses, camels etc. अब इसको ऐसे हम लगाते हैं एनिमल्स की नेक में. ये वाला जो पार्ट है, जो प्लो शाफ्ट होता है हमारा, जो प्लो शाफ्ट है, प्लो शाफ्ट को हम नेक में लगाते हैं. एंड जो ये पार्ट है दैट इज़ योर प्लो शेयर. प्लो शेयर रहता है ग्राउंड पे. Okay. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. So this iron strip is the plowshare. And the main part of the plow is a long log of wood which is called plow shaft. There is a handle at one end of the shaft. एक हैंडल होता है शाफ्ट के बिल्कुल एंड में. एंड द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स. जो मैंने आपको बताया कि ये बुल की नेक पर ऐसे लगता है. वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो. अब वन पेयर बुल का, हॉर्स का, कैमल का, व्हाटएवर, एंड वन फार्मर ईजिली ऑपरेट कर सकता है इस टूल को. The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays. अब आजकल के टाइम में वुडन प्लोज को रिप्लेस करके आयरन प्लोज ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं. Now, hoe. Hoe is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. This is hoe. This is the grip of it. This is the handle. And this is the bent plate. This is the beam. And this is the rod. So, it has a long rod of wood, or you can say iron also. A strong, broad, bent plate of iron is fixed to one of its ends and works like a blade. अब जो ये बेंट प्लेट है ये ब्लेड की तरह वर्क करती है एंड इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स. नाउ कल्टिवेटर. Nowadays plowing is done by a tractor driven cultivator and the use of cultivator saves labor and time. अब प्लो और हो को अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें लेबर भी चाहिए, एनिमल्स की भी रिक्वायरमेंट है एंड टाइम भी ज़्यादा लगता है. बट इन कल्टिवेटर ओनली अ ट्रैक्टर एंड द ड्राइवर हु इज़ कल्टिवेटिंग, दैट्स इट. सो इट सेव्स लेबर and time as well. Now next step is sowing. Now sowing is the most important part of the crop production after which step? After preparation of soil. Yeah? So जब तक हम सो नहीं करेंगे तो क्रॉप कहाँ से बनेगी, है ना. So sowing is the most important part. Now before sowing we have to keep check on one thing, that good quality seeds are selected. अगर आप गुड क्वालिटी सीड्स लोगे तो आपकी प्रोडक्शन अच्छी होएगी, आपकी सेल्स अच्छी होएगी, बिकॉज उसकी लोग उसे पसंद करेंगे उस चीज़ को. अगर आप बैड क्वालिटी लेते हो तो लोग एक बार तो ले लेंगे, ठीक है, दोबारा नहीं लेंगे आपसे, तो उससे तो लॉस आपको ही है. सो good quality seeds are selected and good quality seeds are clean and healthy seeds of a good variety.
अब गुड क्वालिटी सीड्स क्या होने चाहिए? क्लीन होने चाहिए और हेल्दी सीड्स होने चाहिए ऑफ अ गुड वेराइटी, नॉट ऑफ बैड. फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड. जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मर को गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स ही यूज़ करने चाहिए ताकि हाई यील्ड हो, वो ज़्यादा बिके, प्रोडक्शन अच्छी हो, सेल्स अच्छी हो. ठीक है. नाउ सिलेक्शन ऑफ सीड्स. Paheli said, one day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to flow on top. I wonder why some seeds flowed on water. बताओ क्यों हुआ होगा ऐसा? Let's see. We are doing one activity for this. Take a beaker and fill half of it with the water. Put a handful of wheat seeds and stir well and wait for some time. So, are there seeds which float on water? Of course, yes. Seeds होंगे ना ऐसे जो float कर रहे होंगे, कुछ sink कर जाएंगे. So, would those be lighter or heavier than those with sink? Lighter, obviously. Why would they be lighter? See, damaged seeds and became hollow and are thus lighter. So therefore they float on water. तो जो सीड्स वाटर पर फ्लो करते हैं दोज आर डैमेज्ड सीड्स बिकॉज दे आर हॉलो एंड बिकम्स लाइटर. सो दे फ्लोट ऑन वाटर. एंड जो आपके हेल्दी सीड्स होंगे वो सिंक कर जाएंगे. So this is a good method for separating good healthy seeds from the damaged ones. Right? Now before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. अब सोइंग से पहले हमें एक और बात ध्यान में रखनी होती है कि टूल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं उनको सो करने के लिए. लेट्स टॉक अबाउट ट्रेडिशनल टूल. The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends, and these ends pierce into the soil and place seeds there. तो ट्रेडिशनल टूल क्या करता है, एक फनल की तरह होता है और जो सीड्स होते हैं इस फनल में फिल कर दिए जाते हैं और पास करे जाते हैं 2 to 3 पाइप्स में जिनके एंड्स शार्प हों. ये क्या करते हैं, ये सॉइल के बिल्कुल एंड तक जाकर उन्हें पियर्स करते हैं, मतलब उनमें हॉलो करते हैं और सीड्स को वहाँ पर रख देते हैं. नाउ सीड ड्रिल. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. This is the seed drill. So ये ट्रैक्टर्स की यूज़ से सो करते हैं सीड्स को. दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेस एंड डेप्थ्स. आप देख रहे होंगे कि ये प्रॉपर डिस्टेंस पे है, आई मीन ये सेम लेंथ्स के उसमें है. ये रॉड्स जो हैं आपकी ये सेम लेंथ्स की हैं. तो जो सीड्स हैं वो बिल्कुल सेम डिस्टेंसेस पर रखे जाते हैं. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing, and this prevents damage caused by birds. And sowing by using a seed drill saves time and labor. Okay. Bhujo says there is a nursery near my school, so I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? And I'm for sure that आप सब ने भी ऐसे देखे होंगे प्लांट्स जो छोटे छोटे बैग्स में हम रखते हैं, नर्सरीज़ में होते हैं ज़्यादातर. So Paheli said seeds of a few plants such as parry are first grown in nursery.
तो जो अब पैडी फील्ड होती है, जो राइस की क्रॉप होती है, पहले हम उसे नर्सरी में रखते हैं. When they grow into plantlets, they are transplanted in field manually. जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, प्लांट बन जाते हैं, तब हम उन्हें फील्ड में ले जाकर रख देते हैं. And some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. And कुछ फॉरेस्ट और फ्लावरिंग प्लांट्स भी नर्सरी में रखे जाते हैं. An appropriate distance between the seeds is important to avoid overcrowding of plants, and this allows plants to get sufficient sunlight, nutrients, and water from the soil. Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding. अब seed drill क्यों बेस्ट ऑप्शन है? बिकॉज हमने जैसे पढ़ा कि ये इक्वल डिस्टेंस पर रखता है सीड्स को. अब वो सीड्स को अगर हम रखा जाता है इससे, तो उसका क्या बेनिफिट है? उसका बेनिफिट ये है कि ओवर क्राउडिंग नहीं होती एक जगह पे. ठीक है, अगर ऐसी हम बिना सोचे एक ऐसी सीड्स डाल दें अपने हैंड से मैनुअली, या वी हैव डन बिफोर दैट फनल वाला केस, लाइक उसमें पियर्स करता है, तो क्या हो जाता है कि कोई जगह तो ज़्यादा सीड्स चले जाते हैं, कोई जगह बिल्कुल नहीं जाते, तो ओवर क्राउडिंग से बचाता है. और इससे एक बेनिफिट और होता है कि प्लांट को सफिशिएंट सनलाइट मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एंड वाटर मिलता है. और समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग. काफ़ी बार कुछ प्लांट्स को हटा दिया जाता है ओवर क्राउडिंग से रिमूव करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए. Now our next topic is adding manures and fertilizers. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manures and fertilizers. तो manure और fertilizers basically क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम सॉइल में ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ताकि प्लांट्स की जो ग्रोथ हो वो हेल्दी हो. Pujo says that I saw a healthy crop growing in a farm. In the neighboring farm, the plants were weak. So why do some plants grow better than others? Now let's find out. Soil supplies mineral nutrients to the crop. Correct? जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स को क्या सप्लाई करती है? मिनरल्स टू द क्रॉप. These nutrients are essential for the growth of plants. And in certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. अब जो फार्मर्स हैं कुछ एरियाज़ में क्रॉप के बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद क्रॉप सेम फील्ड में ग्रो करते रहते हैं. एंड दिस फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो. इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स. अगर हम आफ्टर वन क्रॉप अगर हम ग्रो करते रहें तो न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा? ठीक है, सो कॉन्टिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. तो सॉइल पुअर हो जाती है, उसकी क्वालिटी उतनी नहीं रहती है. ठीक है, सो देयर फोर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर्स टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. Improper or insufficient manuring results in weak plants. तो इससे क्या होता है, जब अब फार्मर्स उसमें फील्ड्स में जब मैन्योर्स ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, जो सॉइल होती है वो न्यूट्रिएंट्स में फिर से रिप्लेनिश हो जाती है, मतलब फिर से एक टाइप ऑफ न्यू सॉइल बन जाती है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मैन्योरिंग. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. अब manure किस चीज़ से बनता है? जो plant और animal waste का जो decomposition होता है, काव डंग वगैरह,
एंड ऑल, तो इनसे मैन्योर बनता है. फार्मर्स डंप plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. And the decomposition is caused by some microorganisms. And the decomposed matter is used as organic manure. You have already learnt about vermicomposting in class 6th. अब इसमें क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो प्लांट और एनिमल वेस्ट को पिट्स में रखकर डंप कर देते हैं ओपन प्लेसेस में और उन्हें डिकम्पोज होने के लिए अलाउ कर देते हैं. डिकम्पोज मतलब उन्हें और सड़ने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए उन्हें रख देते हैं. अब जो डिकम्पोजिशन है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आती है. अब ऑब्वियसली बात है, अगर कहीं प्लांट एनिमल वेस्ट होगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, बैक्टीरियाज आएंगे, राइट. तो उससे क्या होगा कि जो डिकम्पोज्ड मैटर है फिर वो एज अ क्या यूज़ होता है, एज अ मैन्योर्स इन आवर फील्ड्स. नाउ देयर इज़ वन एक्टिविटी हियर. टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम. Select 3 equal sized seedlings out of these. Now take 3 empty glasses or similar vessels. Mark them A, B and C. To glass A, add little amount of soil mixed with a little cow dung manure. In glass B, put the same amount of soil mixed with a little urea. And take the same amount of soil in glass C without adding anything. अब आपको क्या करना है, ए में आपको सॉइल रखनी है विद काउडंग, बी में उतनी ही अमाउंट की सॉइल रखनी है विद लिटिल यूरिया, एंड इन सी सेम अमाउंट ऑफ सॉइल विदाउट एडिंग एनीथिंग. नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन देम. अब आपको वाटर भी सेम क्वांटिटी का ही डालना है तीनों में. कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली. आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ. आप उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करो. डिड ऑल द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस? नो. Which glass showed better growth of plants, and in which glass was the growth fastest? C. Fertilizers are chemical substances which are rich in a particular nutrient. How are these different from manures? अब fertilizers manure से कैसे different होते हैं? Fertilizers are produced in factories, right? Factories में fertilizers बनते हैं. Some examples are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK. NPK is nitrogen, phosphorus, potassium. अच्छा, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस क्या होता है? अभी तक आपको क्या चीज़ पता चली है कि जो मैन्योर्स हैं वो मैनुअली होते हैं प्लांट और एनिमल वेस्ट से, और फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है. द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट better yield of crops such as wheat, paddy and maize. But excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. But if हम अगर fertilizers को ज़्यादा यूज़ कर लें तो उससे soil fertile कम होती है, less fertile होती है. Fertilizers have also become a source of water pollution. अच्छा, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं अभी वाटर पॉल्यूशन का भी सोर्स होता है, ठीक है. सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फेलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स. या तो आप फर्टिलाइजर्स को सब्स्टिट्यूट करो बाय ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर उन्हें ऐसे ही छोड़ दो अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स. ओके,
The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity and it replenishes the soil with all the nutrients. अब जो मैन्योर है वो सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करती है और आपकी और सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को अच्छा करती है और सॉइल को रिप्लेनिश करती है विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स. Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. Now, crop rotation can be done by growing different crops alternately. अब crop rotation क्या होती है कि कैसे भी crops को alternately grow कर दो. Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. अब पहले के टाइम में नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता था कि लेग्यूम्स ग्रो कर देते थे एज अ फॉडर इन वन सीजन, नेक्स्ट सीजन में वीट कर दिया. सो दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन. अब ऐसे क्या होता था, सॉइल रिप्लेनिश होती थी विद नाइट्रोजन एंड फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस. अब फार्मर्स एनकरेज होने लगे कि इसी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करेंगे. In the previous classes, you have learnt about rhizobium bacteria, right? So, these are present in the nodules of the roots of leguminous plants and they fix atmospheric nitrogen. This is the use of rhizobium, that it is present in the nodules of the roots of leguminous plants and they fix atmospheric nitrogen. Now, difference between fertilizer and manure. A fertilizer is an inorganic salt, and manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung, human waste and plant residues. तो fertilizer inorganic होता है, वो फैक्ट्रीज़ में मेडअप होता है, और जो मैन्योर्स होता है वो नेचुरल सब्सटेंस है, लाइक कैटल डंग का काउ डंग हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, प्लांट रेसिड्यूज हो गए. A fertilizer is prepared in factories and manure can be prepared in the fields. Okay. A fertilizer does not provide any humus to the soil and manure provides a lot of humus to the soil. जो fertilizer है वो सॉइल में humus को प्रोवाइड नहीं करता है और जो मैन्योर है वो बहुत humus प्रोवाइड करता है सॉइल में.